Hello and welcome back, friends, in one more session. Now today's chapter, it is related with the microbes. Quite interesting chapter, or at least you can say it is a quite easy chapter. Only things are there which need just a bit of memorizing. Very few concepts are there, and I believe that this is the chapter which most of the students like, because the memorizing is not that much difficult. Okay, so without wasting any more time, let us start this chapter. PYQ, NEET and AIMS. Here we go. Welcome back. So it's time for this chapter. Without wasting any more time, move on to it. So here is the first question. Which of the following in sewage treatment removes suspended solid? So first question is related with the removal of solids. Okay, so in oral process you must know that removal of solid, so it is a physical process, isn't it? And in the sewage treatment only the primary treatment is there, which is such a physical process which involves filtration and sedimentation. So according to the options here, we can easily say that it must be the primary treatment, isn't it? So the right answer for this one is this primary treatment. Next question. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? So here name of microorganism is given, and then opposite to it its product is given. So which one is the correct match? This is what we are supposed to identify. Methanobacterium lactic acid. Okay, so is it okay? No, Methanobacterium produces methane, so first one not possible. Penicillium notatum acetic acid. No, Penicillium notatum will produce penicillin, isn't it? So it is not possible. Then Saccharomyces cerevisiae, it produces ethanol. I think it is fine. Okay, it is a brewer's yeast, we can say. Acetobacter aceti, it produces antibiotics. No, antibiotics produced by this penicillin. Okay, penicillium. So an Acetobacter aceti, it will produce acetic acid. So the only right answer will be Saccharomyces cerevisiae producing ethanol. Next question. The guts of the cow and buffalo possess. Very easy question. Guts of the cow and buffalo, they have methanogens, isn't it? That is why cow dung is used as a starter material for the biogas plant. Okay. Next question. Here it is. What gases are produced in the anaerobic sludge digester? तो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होता है उसमें कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. लुक एट द ऑप्शन. मीथेन एंड CO2 ओनली, नहीं, इनकम्प्लीट है. मीथेन H2S एंड CO2, तीसरा है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड O2, चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2. सो वेरी ऑब्वियस आंसर, इट इज मीथेन H2S एंड CO2. ठीक है, इसी मिक्सचर को तो हम बायोगैस कहते हैं, isn't it? Next question. During sewage treatment, biogas are produced which include. Same question. वही क्वेश्चन है कि बायोगैस जो बनता है उसका कंपोजिशन क्या है. सो जस्ट वी हैव सॉल्व. इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड देन व्हाट. हाइड्रोजन सल्फाइड था, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा क्या था, मीथेन था. सो राइट आंसर हियर इट इज लास्ट वन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A good producer of citric acid. Good producer of citric acid. So basically बहुत ही सिंपल टाइप की ये पूरी की पूरी मेमोराइजिंग है. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ी सी अगर आप मतलब चीज़ें याद रख सकते हो तो भी हो जाएगा. सो एसिटिक एसिड, सॉरी सिट्रिक एसिड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज़ एस्परजिलस. ओके, तो इनका ये क्या है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या फिर कमर्शियल यूज़ कह सकते हो आप इसे. फाइन.
क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो ब्यूटिलिक एसिड तैयार करता है, सैकेरोमाइसिस इथेनॉल बनाता है। सुडोमोनास का जो यूज़ है वैसे ऑर्गेनिक एसिड में तो है नहीं, लेकिन इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ऑयल हाइड्रोकार्बन्स। ओके, खासकर इसे ओशन में यूज़ किया जाता है व्हेनेवर देयर इज ऑयल स्पिल्ड फ्रॉम द ब्रोकन शिप और ब्रोकन वेसल। अगर बड़ा जहाज अगर कोई टूट जाता है, डूब जाता है, तो उसके जो तेल का रिझाव होता है उस तेल से काफ़ी पोल्यूशन होने का खतरा रहता है। सो सच ए टाइम सुडोमोनास बैक्टीरिया इज यूज्ड। नेक्स्ट वन, मोनेस्कस परप्यूरियस इज अ ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। मोनेस्कस परप्यूरियस, ठीक है, अब इसका यूज़ कमर्शियली कौन से इसमें होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाइट सिंपल वन, किस लिए होता है इसका यूज़? ऑप्शन देखते हैं, इथेनॉल में होता है, नहीं। स्ट्रेप्टोकाइनेस फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, थर्ड सिट्रिक एसिड, एंड लास्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन। सो मोनेस्कस परप्यूरियस जो कि एक ईस्ट है, उसका कमर्शियल लेवल पर यूज़ किस लिए होता है? फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टैटिन्स। यू मस्ट नो दिस, स्टैटिन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। एंड स्टैटिन का काम क्या है? दे रिड्यूस दिस ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काम में आते हैं। सो विच कैन सेव फ्रॉम द यू कैन से हार्ट अटैक और हार्ट डिसऑर्डर। ओके, कार्डियक डिसऑर्डर से बचने के लिए ये काम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो ये कौन बनाता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट कॉल्ड एज मोनेस्कस परप्यूरियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी पूरे डिस्कशन में आप देखोगे। अ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। तो यहाँ पर ये बहुत चीज़ अच्छे से समझनी होगी हमें कि एक पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन माने हार्ट अटैक के वजह से लाया गया है, तो उसे इमीडिएटली क्या दिया जाएगा? तो अब यहाँ पर उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना ये पहली ड्यूटी हो सकती है क्या? नहीं, अभी उसको हार्ट अटैक हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं खून की गांठ जो है क्लॉट बन चुका है, ठीक है, पर्टिकुलरली करोनरी ब्लड वेसल्स में। तो उसको पहले डिसॉल्व करना होगा उस गांठ को, उस क्लॉट को। तो उसके लिए क्या चाहिए? इट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, isn't it? So here right answer will be the clot buster, that is streptokinase. So D will be the right answer. Okay, here it is. So patient brought to the hospital with myocardial infarction is normally immediately given streptokinase, which is a clot buster, जो क्या करेगा? क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट बहुत ही सिंपल है, isn't it? ब्रेड एंड बियर। दैट इज वाई इट इज जो है सैकरोमाइसिस सर्वाइसिस, उसे बेकर सिस्ट और ब्रूअर सिस्ट दोनों भी कहा जाता है। बाकी का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिसीज यूजिंग माइक्रो। तो कौन सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकता है पेस्ट एंड डिसीज का? ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन, न्यूक्लियोपॉलीहेट्रोवायरस अगेंस्ट व्हाइट रस्ट इन ब्रासिका, then BT cotton to increase cotton yield, and ladybird beetle against aphid in mustard। तो ये क्वेश्चन 2012 का है। आज के डेट में हम इसे चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज 2 ऑप्शंस आर राइट हियर, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर राइट, ठीक है। तो मस्टर्ड में एफिड कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड बीटल का भी यूज होता है, और ये जो पहला है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, कुछ खास प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी ट्राइकोडर्मा का यूज होता है, राइट। रेस्ट ऑफ द 2 ये जो है गलत पेयरिंग, गलत चीज तरीके से रखा गया है। व्हाइट रस्ट इन ब्रासिका, नो नथिंग लाइक दैट, ऐसे नहीं है। न्यूक्लियो पॉलीहेट्रोवायरस का कुछ डिसीजेस या सॉरी इंसेक्ट के लिए, मतलब इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, नॉट अगेंस्ट द व्हाइट रस्ट, दैट इज अ डिसीज। ओके, बीटी कॉटन, इससे कॉटन यील्ड बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ठीक है वो बढ़ जाती है, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि पेस्ट अटैक कम होता है। तो बीटी कॉटन पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए बी और सी ये गलत हो जाएंगे, ए और डी लेकिन आज के डेट में दोनों सही है। लेकिन जब उन्होंने आंसर दिया था बोर्ड ने, तब का जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, तब उन्होंने इसका आंसर सिर्फ ए दिया था, राइट। आज के डेट में डी वो भी सही है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज। डोमेस्टिक सीवेज बड़े मेट्रो सिटीज में क्या होता है उसका? हैज अ हाई बीओडी एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। कहते हैं कि बड़े सिटीज का जो डोमेस्टिक सीवेज है, सीवेज समझते हैं आप, ड्रेनेज, तो जो घरों से निकलने वाला जो सीवेज है उसके बारे में क्या है, क्या सच है?
तो उसका बीओडी ज़्यादा होता है कि वो क्योंकि उसमें एरोबिक और अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है इज प्रोसेस बाय एरोबिक एंड देन अनएरोबिक बैक्टीरिया इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके ट्रीटमेंट में पहले एरोबिक और बाद में अनएरोबिक बैक्टीरिया आते हैं एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तीसरा ऑप्शन कहता है व्हेन ट्रीटेड इन एसटीपी दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डज नॉट रियली रिक्वायर द एरेशन स्टेप। तो जब इनको ट्रीटमेंट दी जाती है तो तब एरेशन स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती एज सीवेज कंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन, क्योंकि पहले से ही उसमें ऑक्सीजन काफ़ी सारा होता है। चौथा ऑप्शन कहता है हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है, चौथा ऑप्शन कहता है कि इसमें सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉल्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से सही कौन सा है ये हमें बोलना है। तो अब तक आप समझ गए होंगे इट मस्ट बी द सेकेंड वन। क्या कि डोमेस्टिक सीवेज में पहली फिजिकल स्टेप होने के बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहला पार्ट कौन सा एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ का है। ठीक है, फिर उसमें उसको अलग से निकाल करके अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है, वहाँ पर अनएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जो पहला ऑप्शन है हाई बीओडी होने का, ये जो रीजन बताया जा रहा है ये गलत है। हाई बीओडी ये तो ठीक है, लेकिन इसका रीजन जो बताया इज इट कंटेन बोथ एरोबिक अनएरोबिक, नहीं। बीओडी होने का रीजन क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने से बीओडी ज्यादा रहेगा, ना कि ये एरोबिक अनएरोबिक। तीसरे ऑप्शन में गलत क्या, व्हेन ट्रीटेड इन एसटीपी डज नॉट रियली रिक्वायर एरेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एरेशन स्टेप नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ठीक है, तो प्राइमरी से लेकर के उसको हम खास करके एरेशन स्टेप प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये तो पूरा गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा था, हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड, नहीं, ये डोमेस्टिक के लिए नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए ये बिल्कुल सही होगा कि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट, सस्पेंडेड सॉलिड ये ज़्यादा होने का जो खतरा है या फिर जो भी कंडीशन है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर सही मानी जा सकती है, डोमेस्टिक लेवल पर नहीं। ओके, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक्स ए एंड बी। बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। अ ड्रग इज यूज्ड फॉर डैश डैश दैट इज ए पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बी, द वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द टू ब्लैंक। ठीक है, तो इसमें हमें ए और बी दोनों जगह पर ब्लैंक है, वहां पर हमें कुछ ना कुछ एक वर्ड यूज करना है, जो अभी ऑप्शन में दो वर्ड दिए, जैसे यहाँ पर हार्ट पेनिसिलियम है, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्राइकोडर्मा है, फिर स्वाइन फ्लू मोनेस्कस है और एड्स सूडोमोनास है। तो पढ़ते हैं, अभी एक एक ब्लैंक रख करके चेक कर सकते हैं। अ ड्रग यूज फॉर कौन सा, हार्ट पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम, ऐसा कुछ है। हार्ट पेशेंट को पेनिसिलिन दिया जाता है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं होता। सेकेंड पढ़ते हैं, सेकेंड लगा करके ड्रग यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ड्रग यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या था, यस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा के लिए इससे ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, स्वाइन फ्लू मोनेस्कस, मतलब कैसे हो जाएगा ये, ड्रग यूज्ड फॉर स्वाइन फ्लू पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनेस्कस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या ये सही है, स्वाइन फ्लू के लिए ऐसा कुछ है क्या, मोनेस्कस का कुछ काम है, नहीं। देन एड्स और सूडोमोनास, फिर एक बार ड्रग यूज फॉर एड्स पेशेंट, और वो किससे बना रहे, सूडोमोनास, ऐसा कुछ सुना है, नहीं। अब अगर देखोगे ट्राइकोडर्मा, ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा का रोल प्लांट में भी है और ह्यूमन में भी है। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा का फंक्शन कैसे है, इट रिड्यूसेस समवट व्हाट यू कैन से, इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी वो कम कर सकता है, और मतलब हाइपर इम्यूनिटी हो जाती है, हाइपर एक्टिव होने लगती है, तो फिर खुद के ही मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट अपनी बॉडी के बेनिफिट के लिए आ रहा है, लेकिन उस पर वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, इट विल बी बी। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा का इस तरीके से मतलब उस वैसे पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग मैच ढूंढना है, ना कि सही। थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट, बहुत बार बोलता हूँ मैं, गलती कर जाते हैं। तो ईस्ट स्टैटिन्स, दूसरा एसिटोबैक्टर एसेटी एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, लैक्टिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। बट यू से अभी तो बोला था मैंने, ब्यूटिलिकम इसके स्पीशीज के नाम में है, इट शुड बी ब्यूटिलिक एसिड एंड नॉट लैक्टिक एसिड, सो दिस इज द रॉन्ग पेयर, इजंट इट। ईस्ट स्टैटिन तो अभी हमने देखा था,
राइट, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देता है। एसिटोबैक्टर जो एसिटिक एसिड बना देता है, तो ये भी सही है। सही है मतलब सही जवाब तो नहीं है, लेकिन जो सही पेयर कह सकते हैं इसे। और एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, ये सही है। हमें क्या पूछा था इन्होंने, रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पर, रॉन्ग पूछा है, तो एक ही रॉन्ग है, सो दिस इज द राइट आंसर, सॉरी। नेक्स्ट, ethanol is commercially produced through a particular species of, isn't it too much simple? Saccharomyces cerevisiae. Next question, so which one of the following is wrongly matched in the given table? तो wrong match ढूंढना इसमें, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, अभी तो हमने देखा था, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, मोनेस्कस परप्यूरियस, स्टैटिन, लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी डिस्कस हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, लाइपेज, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन। सो व्हाट यू से, इसमें के 3 जो है अभी 15-16 क्वेश्चन में ही हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, विच इज रॉन्ग एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट लाइपेज और समथिंग एल्स, रेदर इट इज ब्यूटेरिक एसिड। ओके, वैसे लाइपेज का स्टेन रिमूव करने में बिल्कुल ये सही है, लेकिन लाइपेज बनाता ही नहीं है ना, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, इट प्रोड्यूस ब्यूटेरिक एसिड, सो द रॉन्ग पेयर एंड द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड। तो ऐसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट तो है लेकिन उसमें के भी प्रिमिटिव, जो क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कहाँ होते हैं, डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। इजंट इट क्वाइट सिंपल, किसी अभी एक क्वेश्चन देखा था उसमें ये हमने देखा है, मिथेनोजेंस, राइट, तो मीथेन प्रोड्यूसिंग है। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब एंड देयर इंपॉर्टेंस। सो सैक्चारोमाइसिस सेरेवियाई, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो हम अभी लिख देते, बाद में हमें कंफ्यूज करता है कई बार। ए का क्या है, 3, फिर बी देखते हैं, मोनेस्कस परप्यूरियस, ट्राइकोडर्मा और प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। सो प्रोपायो बैक्टीरियम शर्मानी, इसको कहाँ जोड़ देते हैं, फिर स्विस चीज़ पर, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो चीज़ के जो अलग अलग क्वालिटीज़ दिए हैं तो उसमें आ जाता है स्विस चीज़ का जो पर्टिकुलर फ्लेवर है, तो उसमें इस बैक्टीरिया का मेन कंट्रीब्यूशन है। सो डी कहाँ पर जा रहा है, डी जा रहा है, तो अब बचा कौन, मोनेस्कस परप्यूरियस। इतने से आंसर पर पहुंच सकते हैं क्या हम, ए का 3 और बी का 2, सॉरी डी का 2, ए का 3, 2 ए और बी तो कैंसिल हो गए, बचे कौन अभी, सी और डी, ठीक है। अब देखते हैं मोनेस्कस परप्यूरियस और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्या है क्या ये, और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो अभी हमने देखा था, ये हो गया ट्राइकोडर्मा का। और मोनेस्कस परप्यूरियस जो कि एक ईस्ट है, वो क्या है, स्टैटिन बना देता है, तो ये आ गया उसका। तो बी का क्या आ रहा है, 4, और सी का क्या आ रहा है, सी का 1 आ रहा है, isn't it? तो क्या आ गया ये, 3, 4, 1, 2, so right answer will be this one, okay, 3, 4, 1, 2 like this. Next question, microbe used for biocontrol of pest, butterfly, caterpillar is, caterpillar biocontrol, too much simple, माइक्रोब की बात हो रही है, सो इट विल बी बैसिलस thuringiensis, वेरी सिंपल। कैटरपिलर को जो खास करके, कैटरपिलर इट इज अ स्टेज, ठीक है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर पर भी इसका इफेक्ट होता है, किसका, ये बीटी का, जो उसका जो पॉइजन बनता है, टॉक्सिन बनता है उसका, ओके। सेम लाइक वो जो बोलवर्म्स होते हैं वो भी उसके कैटरपिलर स्टेज में ही वो अफेक्ट कर जाता है। इट इज़ नॉट सैक्चारोमाइसिस सेरेवियाई, इट इज़ फॉर इथेनॉल। ट्राइकोडर्मा इम्यूनोसप्रेसिव के बारे में देखा, स्ट्रेप्टोकोकस को भी हमने देखा, वो भी इसी तरीके से स्ट्रेप्टोकाइनेज ए बनाता है, राइट। नेक्स्ट, which of the following microbe forms symbiotic association with plant and helps them in their nutrition? तो ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ये पहली कंडीशन, और दूसरा उन्हें उनके न्यूट्रिशन में मदद करता है। अब अजोटोबैक्टर न्यूट्रिशन में तो मदद करता है लेकिन वो फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक नहीं, इसलिए गलत। दूसरा एस्परजिलस, ये तो सिम्बायोसिस तो छोड़ो, पैरासाइटिक है, तो ये भी काम में नहीं आएगा। ग्लोमस और ट्राइकोडर्मा,
So glomus is the right answer. It is a fungi. It is basically endomycorrhiza. क्या है ये? Endomycorrhiza, right? Endomycorrhiza जो रूट के अंदर जाकर के इन्फेक्ट करते हैं. So glomus is the exam right answer. Trichoderma भी अभी तो ये चीजें डिस्कस हुई है. Next, a nitrogen fixing microbe associated with azolla in rice field. तो राइस फील्ड में जब जिसका शुरुआत का 1-2 महीने का जो ड्यूरेशन है, इट इज अंडर वाटर इज स्टैग्नेटेड इन द फील्ड. पानी जो फील्ड में जमा किया गया है, तो उस वक्त अगर उस जमे हुए पानी में हम किसी ऐसे प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्स करवा सकता है, तो उससे जो है वो फिक्स हुआ नाइट्रोजन राइस को मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें अजोला का स्प्रेड किया जाता है. अजोला इट इज एक्वेटिक फर्न, एक्वेटिक टेरिडोफाइट. ओके, तो अजोला के लीफ में इसमें से कौन से है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब होते हैं? राइट आंसर इट इज एनाबेना. इस सिम्बायोसिस का नाम ऐसे अकेला अजोला बोला ही नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम. अजोला एनाबेना इसी तरीके से पेयर में ही बोला जाता है. ओके, सो यू कैन ऑल्सो मेमोराइज दिस वन लाइक दिस, अजोला एनाबेना, लाइक दिस यू कैन से. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इज दैट ऑफ. गोबर गैस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? ऑब्वियसली इट विल बी मीथेन. Next question. An organism used as a biofertilizer for raising soybean crop. अब soybean being leguminous क्या होगा उसमें? Surely rhizobium. ठीक है. Azospirillum, Azotobacter, these are free living. Nostoc is as well free living. So symbiosis में रहने वाला सोयाबीन के खासकर इसमें कौन सा रहेगा? Rhizobium. Next, which one of the following helps in absorption of phosphorus from soil by plants? तो which one of the following is help in absorption of phosphorus? Same question. Endomycorrhiza. ठीक है, इट इज ग्लोमस. क्योंकि राइजोबियम, फ्रैंकिया ये एट द मोस्ट क्या करेंगे? नाइट्रोजन अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन फास्फोरस एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, राइट? तो इसके जो बाहर जो फिलामेंट रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं? फास्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे सकते हैं. ठीक है, उनकी जो इफिशियंसी है ये चीज एब्जॉर्ब करने की वो रूट हेयर से ज्यादा है. रीजन उनका जो फिलामेंट है उसका डायमीटर रूट हेयर से भी काफी कम है. नेक्स्ट, Which one of the following is not a biofertilizer? इसमें से कौन सा बायोफर्टिलाइजर नहीं है? So agrobacterium, rhizobium, nostoc, mycorrhiza. Mycorrhiza it is there. Just we have seen the example of glomus. Nostoc it is also there. Rhizobium is also there. Which is not agrobacterium. Agrobacterium it is used as an, इसका जो प्लाज्मिड है उसे हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. ठीक है, जिसे हम टीडीएनए बोलते हैं, टीडीएनए. तो ये बायोफर्टिलाइजर करके काम नहीं आता है. हालांकि उससे भी बहुत बढ़िया काम में आता है, लेकिन बायोफर्टिलाइजर के काम में नहीं आता है. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? इसमें का कौन सा है जो प्रोकैरियोट नहीं है? ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड. प्रीवियस स्टूडेंट्स है तो उनके आज दिन भर फोन लगे हुए हैं. दे आर कॉलिंग मी. शी इज सुप्रिया गोडकासे फ्रॉम 2007 बैच. ओके, ये क्या मैंने गलत ही बटन दबा दिया? अरे भगवान, तो कई सारे खत्म नहीं होगा अभी. एक्सक्यूज मी. Yes. तो yes, not a biofertilizer. Sorry for interruption. ये कई सारे शॉर्टकट बना के रखे, तो पेन को प्रॉपर कलर पिकअप करने के लिए मुझे जो 2 बटन्स है, तो उसमें से जब एक क्लिक करता हूँ तो गलती से कई बार दूसरा बाजू का प्रेस हो जाता है. सॉरी फॉर दैट. ओके,
सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, तो कौन सा इसमें का बायो फर्टिलाइजर नहीं है? सो दैट वाज एग्रोबैक्टीरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वी हैव फिनिश्ड दिस वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है? नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैकरोमाइसिस, ऑसिलेटोरिया. सो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का नाम आ रहा है. नॉस्टॉक एनीवे बिलोंग्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑसिलेटोरिया ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है. सो इट इज ओनली सैकरोमाइसिस विच इज ईस्ट बीइंग फंगस, वो तो हो गया यूकैरियोट, तो वो तो प्रोकैरियोट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of. Now this is the latest question from 2018, so if you don't know the answer, it is vitamin B2. I'm not sure it is given in NCERT or not, but curdling of milk मतलब मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशियस जो होता है वो उससे ही बना हुआ दही होता है, कर्ड होता है. उसका रीज़न उसमें बाकी सब न्यूट्रिएंट के साथ साथ B2 विटामिन एक्स्ट्रा होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. Next, which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant diseases? So, as I told you just before few questions, it is a trichoderma. It is used in both cases. ह्यूमन बेबी इसका मेडिसिन में यूज होता है और प्लांट के बायोकंट्रोल एजेंट के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है. इट इज ट्राइकोडर्मा. इट इज नॉट क्लोरेला एनाबेना बिकॉज दीज आर क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर रहता है. एनाबेना जो है नाइट्रोजन फिक्सर है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाने वाला है. ओनली ट्राइकोडर्मा इज देयर विच कैन बी यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. अब इसमें का कौन सा है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला है? ठीक है, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज, साइक्लोस्पोरिन 8. व्हाट यू से, वही क्वेश्चन. देखो मैंने जैसे जब ये सेशन शुरुआत किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलने वाला है. सो अगेन आंसर विल बी सेम. इट इज स्टैटिन. ऑब्वियसली स्टैटिन, स्टैटिक को आप दिमाग में रख सकते हो. स्टैटिक माने क्या? कांस्टेंट रहना, स्थिर रहना. तो स्टैटिन क्या है फिर? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को स्थिर रख रहा है, उसे बढ़ने नहीं दे रहा है. उसको जो अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करने का काम कर रहा है. सो स्टैटिन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, देन सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट. बायोकंट्रोल एजेंट का ही ग्रुप हमें ढूंढना है यहाँ पर. ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बैसिलस thuringiensis. बायो कंट्रोल मतलब जो डिसीज या पेस्ट दोनों में से किसी एक को कंट्रोल करने में मदद करे. अब यहाँ पर ट्राइकोडर्मा सही है, बैक्यूलोवायरस ये भी कर जाते हैं काम, और बैसिलस thuringiensis इसका भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है. दूसरे इसमें ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, क्या ये बायो कंट्रोल है? नहीं, बायो फर्टिलाइजर है. तो ये दोनों गलत है. ट्राइकोडर्मा इसमें सही है. तीसरे में नॉस्टॉक गलत, एजोस्पाइरिलम गलत, न्यूक्लियोपोलीवेड्रस सही. यहाँ पर कुछ स्पेलिंग करेक्शन है. बैसिलस thuringiensis ये ठीक है. टोबैको मोजाइक वायरस नो, ये तो उसका मतलब डिसीज कॉजिंग पैथोजन हो गया. राफिड इसका पेस्ट हो गया, तो ये भी नहीं. तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ बायो कंट्रोल एजेंट. सो फर्स्ट वन इज फाइन. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस. ठीक है, ये फोन आज कंसिस्टेंटली बजता जा रहा है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड इट, डोंट वरी. So match the following organism with the product they produce. Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Acetobacter aceti. तो काफ़ी सिंपल है, कुछ खास है नहीं इसमें. Lactobacillus will produce curd, right? Saccharomyces cerevisiae will produce bread. Aspergillus niger and Acetobacter aceti. Acetobacter aceti produce acetic acid. बचा क्या? Citric acid. So what will be the sequence then? A goes to 1, B goes to, it is 3, C goes to 2, and D goes to 4. So 1, 3, 2, 4. Which one it is? 1, 3, 2, 4. It is first. It says question onwards. Chloramphenicol and erythromycin. These are broad spectrum antibiotics. Means for variety of pathogen they can be used. That is why it is said that they are broad spectrum antibiotics. If they are used for a particular species of pathogen, they are called as narrow spectrum. But these two, chloramphenicol and erythromycin, they are called as broad spectrum because they can be used against variety of types of pathogens. Okay, so they are produced by, look at the option, Nitrobacter, Rhizobium and Penicillium. You must be sure that at least these three are not there. Even if you don't know it is Streptomyces, but at least you should be sure regarding these three कि ये तो नहीं है, क्यों? तो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में आपने इसको देखा होगा. फिर राइजोबियम ये सिम्बायोटिक वाला है, और पेनिसिलियम ये तो पेनिसिलिन बनाने वाला है. सो इट इज ओनली स्ट्रेप्टोमाइसिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्या बोलोगे? अब उसे हॉस्पिटल में लाया, उसका हार्ट अटैक हुआ है, तो उसे अभी स्टैटिन दे सकते हैं क्या? नहीं, क्या दिया जा सकता है? इट विल बी स्ट्रेप्टोकाइनेज एज अ क्लॉट बस्टर। नेक्स्ट, माइक्रोब आर यूज्ड इन, माइक्रोब अभी यहाँ पर स्टेप दिए हैं सीवेज ट्रीटमेंट के, तो उसके कौन से स्टेप में माइक्रोब का यूज होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, थर्ड अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, फोर्थ प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ही एक ऐसी स्टेज है सीवेज ट्रीटमेंट की जिसमें विच इज अ फिजिकल प्रोसेस टोटली, वेयर देयर इज जस्ट टू प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सो देयर इज नो यूज ऑफ माइक्रोब्स एट ऑल। Okay, so except first all, that is 2 3 4, so answer will be it is C, 2 3 4 तीनों स्टेप में होता है। नेक्स्ट, चूज द राइट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर राइट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ई कोलाई, राइजोबियम, बैसिलस thuringiensis, सुडोमोनास। तो सुडोमोनास का भी कहा था, राइजोबियम का सबसे इजी दे देते हैं, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। निफ का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एस्चेरिशिया कोलाई, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, यस। अब ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इधर से तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्या क्या हुआ, ए का क्या आया? 3 और बी का आया 1। सी, बैसिलस thuringiensis, इट इज बायोडिकम्पोज्ड इंसेक्टिसाइड, ठीक है, क्योंकि बैसिलस thuringiensis से जो इंसेक्टिसाइड बन रहा है उसका बायोलॉजिकल भी डिकम्पोजिशन हो सकता है, वो कोई इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक नहीं है, राइट? सिंथेटिक है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनवाया गया है। ओके, तो सी का क्या आता है? 5 और बचा डी। डी क्या है? सुडोमोनास प्यूटिडा। सुडोमोनास के बारे में भी हमने बोला था, ठीक है। समंदर में अगर कोई जहाज टूट जाता है, उसका ऑयल अगर लीकेज हो रहा है तो वो उससे पोल्यूशन होता है, राइट? सो डी का आता है 2। सो सॉरी, इट शुड बी 5 लाइक दिस। सो 3152 3152 पहले इसमें, लेकिन गलत हो गया, फिर लास्ट है, इट इज 3152। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लक्स इज रिड्यूस्ड? अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन है, ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग इट शुड बी फ्लक इज रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में से जो बाहर आ जाता है उसमें अगर ऑक्सीजन कम हो जा रहा है तो क्या होगा? इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Second, center of flock will become anoxic, which would cause death of bacteria and eventually breakage of flocks. Third, flock would increase in size as anaerobic bacteria would grow around flocks and protozoa would grow in large number. बाप रे, इस रेट पर बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्लो डाउन होगा, ये सही है लेकिन पूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये तो सही है कि स्लो डाउन हो जाएगा लेकिन कंप्लीट चीज़ नहीं आ रही, ये तो कंप्लीट फाइनल इफेक्ट बोल रहा है। सेंटर ऑफ फ्लॉक विल बिकम एनॉक्सिक, अच्छा ठीक है, फ्लॉक के सेंटर में ऑक्सीजन कम रहेगा, विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, ऑब्वियसली एरोबिक बैक्टीरिया की वहाँ पर डेथ हो जाएगी, एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक, इट सीम्स टू बी ट्रू। थर्ड क्या है? फ्लॉक वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक्स। नहीं, पहले उसका एरोबिक होना पड़ेगा फिर उसके बाद एनारोबिक की ग्रोथ होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोटोजोआ नो, दिस नो, सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, फ्लॉक के सेंटर में ऑक्सीजन कम होने की वजह से एनॉक्सिक कंडीशन बन जाएगी, तो उसके वजह से जो एरोबिक बैक्टीरिया है जो फ्लॉक के अंदर होते हैं उनकी डेथ हो जाएगी, इसकी वजह से फ्लॉक जो है वो बड़े नहीं हो पाएंगे, साइज उनका बढ़ नहीं पाएगा। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट। Which one of the following statement regarding BOD is true? What is BOD? Biological oxygen demand. तो ये कब क्या रहता है? Biological oxygen demand, you can say it is the index to show the pollution potential. मतलब कोई पानी का सैंपल हमारे पास है तो उसमें कितना पोल्यूशन हुआ है वो हम कैसे चेक करते हैं? We check its BOD. अगर BOD ज़्यादा है तो इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो है ज़्यादा है। So greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. Yes, it is. यही तो बात कर रहा था मैं। सेकंड क्या है? Greater the BOD of wastewater, less its, नहीं, less तो नहीं हो सकता है, less गलत हो गया है, तो ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? Lesser the BOD of wastewater, more is its polluting potential. ये भी गलत हो गया, BOD ज़्यादा तो पोल्यूशन ज़्यादा। लास्ट, lesser the BOD of wastewater, less its, अब लेसर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर लेस इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल, ये भी सही है,
ठीक है, greater the BOD, greater will be the potential, lesser the BOD, less is its polluting potential. So both are true. ठीक है, now this is question from 2017 and look at it how it is framed. Which of the following statement regarding BOD is true? So both A and D are equally fine. दोनों में भी कुछ खास गलत नहीं है. Lesser the BOD of waste water, less is its polluting potential. Yes, both are true. A as well as D, दोनों भी सही है. Whichever you can pick up. Such questions are always challenged. Next, the free living fungus Trichoderma can be used for free living fungus Trichoderma. So, killing insect, biocontrol of plant diseases, controlling butterfly, caterpillar, producing antibiotics. Look at the question. It is again from 2017 and same kind of stuff it is repeated. वही चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये. ट्राइकोडर्मा पर चाहे आप कितने भी सवाल ढूंढ लो, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा हमें मुश्किल नहीं मिलेगा. तो ट्राइकोडर्मा को इंसेक्ट किल करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या? नहीं. ट्राइकोडर्मा मैंने आपको बोला है, एक तो उसका इंसानों में भी रोल है और दूसरा इधर प्लांट में भी है. फॉर इट इज़ यूज्ड एज एन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीजेज. स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल फाइंड सेम लाइन एज इट इज़ लाइन इन द एनसीईआरटी. कुछ भी बिल्कुल एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं किया है. ये बटरफ्लाई कैटरपिलर उसके लिए तो बीटी है, बैसिलस thuringiensis. एंटीबायोटिक्स के लिए पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम. ओके, तो ये तो नहीं है. और इंसेक्ट किल करने का काम फिर एक बार उसी को जाता है, बीटी को. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद द कॉलम 1 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिडी. सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व. अभी हमने इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था. लैक्टोबैसिलस गोज टू लैक्टिक एसिड, देन एस्परजिलस नाइगर. ओके, एसिटोबैक्टर एसिडी को पहले जोड़ देते हैं एसिटिक एसिड. क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, इसको जोड़ देते हैं ब्यूटिलिक एसिड. अब बचा कौन? एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड. ओके, सो ए गोज टू, ए कहाँ पर गया? 3 के पास. ठीक है, तो 3 वाला तो एक ही दिख रहा है. लेट्स सी, सेकंड विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, वन मोर मैच द पेयर. सो नाउ, अब यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन. कितने सारे मैच द पेयर है? तो आपको एक तो बात समझ में आ गई होगी कि ये चैप्टर पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल और मेमोराइजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. रियरली यू विल फाइंड सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन दिस वन. ओके, सो देखो अभी स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, ए, पेनिसिलिन. तो सिंपल पहले जोड़ देते हैं. और वैसे वो भी हमें कुछ छोड़ेंगे नहीं. वो भी क्या करेंगे कि जो सिंपल है वो सबको दे देंगे शायद. ठीक है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटम. तो डी का 1, तो ये बी और ये दोनों चले गए. अभी बचे कौन? सी और डी. ठीक है, अभी कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज. ठीक है, नाम में ही है, बहुत ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, तो ए का 3, सी इज द राइट आंसर. बाकी का जो बचा है उसका खाली हमें चेक करना है. स्टैटिन कहा जा रहा है, यस इट इज मोनेस्कस परफिरियस ईस्ट. ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, इट इज immunosuppressive agent, Trichoderma. Right? Next, select the correct one. Beer is produced by distillation of fermented broth. I told you this is I think 3rd time. ये तीसरी बार है जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस और नॉन डिस्टिल्ड अगर रहते हैं तो उनमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है. बियर एंड वाइन ये 2 ऐसे हैं कि जिनमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है. रीज़न, उनका डिस्टिलेशन नहीं किया होता है. लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसको डिस्टिल्ड है. इज इट सो? नो. सो दिस इज रॉन्ग. बॉटल जूस आर क्लियर्ड बाय प्रोटीज एंड पेक्टिनेज. तो बॉटल जूस को क्लियर करने के लिए उसमें प्रोटीज और पेक्टिनेज मिला दिए जाते हैं. ठीक है, मिथेनोजन डाइजेस्ट सेल्यूलोज एरोबिकली. और लास्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. व्हाट यू से? अभी वही चीज़ें कितनी बार हम बार पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं, इसका उसको और उसका इसको मिला करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने का काम क्या है? अभी तो मैंने बोला था स्टैटिक के हिसाब से. ठीक है, तो ये क्या रहेगा? स्टैटिन रहेगा. लेकिन यहाँ पर क्या दिया? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर है. तो ये गलत हो गया. मिथेनोजन ये काम कैसे कर रहे? एरोबिकली. इज इट सो? नो, दे आर डूइंग इट अनएरोबिकली. तो ये भी गलत हो गया. बचा क्या फिर? सिर्फ ये. बॉटल जूस, मतलब हम घर पे जो जूस बनाते हैं और हम जो माजा जैसे बॉटल वाले जूस जो लाते हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो क्लैरिटी का बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, माजा जैसे जो ड्रिंक दिखते हैं हमें फ्रूट जूस, तो वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं. लेकिन वही अगर घर पे मैंगो जूस बनाते हैं तो वो उतना क्लियर नहीं होता है. रीज़न,
उसमें प्रोटीज और पेक्टिनेज मिला करके क्या है, सब जो उसके प्रोटीन या पेक्टिन जैसे उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है. ओके, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट वन. Which among the following alcoholic beverage will be formed by distillation? देखो अभी डिस्टिलेशन से बनाया मतलब उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो वाइन और बियर दोनों में कैसा है, कम है. ऑल की तो बात नहीं आएगी, सो इट विल बी ब्रांडी. Here onwards some 5 questions on the assertion reason type. Yeast such as Saccharomyces cerevisiae are used in baking industry. True, बिल्कुल सही है. बेकिंग और ब्रूअर्स दोनों इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज होता है. सो दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कॉजेज ब्रेड डव टू राइज बाय थर्मल एक्सपेंशन. इज इट, डोंट यू थिंक कि हमने कल ही सॉल्व किया था? ये भी सही है. और व्हाट यू से, इसी वास्ते इसका ईस्ट का यूज किया जा सकता है. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? या फिर ये प्रॉपर रीजन नहीं लगता है आपको, सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज लगता है? ठीक है, तो ईस्ट जो है वो CO2 तैयार करता है और वो CO2 की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है और तभी तो उसे बेकिंग या ब्रेड तैयार करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो ए विल बी द आंसर. नेक्स्ट वन, विटामिन B2 इज फाउंड इन द सीरियल ग्रीन वेजिटेबल ब्रूअर्स ईस्ट, एग वाइट, मिल्क एंड लीवर. रीजन, इट कैन बी कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय सम ईस्ट. तो क्या कहना पड़ेगा, सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज, दोनों चीज़ें सही है. विटामिन B2 के सोर्सेज दिए, अभी आपने 5th या 6th क्लास में पढ़े होंगे, और इसको ईस्ट के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जाता है. तो दोनों चीज़ें सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं आती. सो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट. ट्रू, अभी तो हमने इतने देर से वही तो पढ़ रहे, ट्राइकोडर्मा. और रीजन क्या है, बैक्यूलोवायरस आल्सो यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट. यस, इट इज आल्सो ट्रू. दोनों स्टेटमेंट एज इट इज गिवन इन द NCERT. सो बट सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज, दोनों सही है. सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज, आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, न्यूक्लियोपोलियोट्रोवायरस यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. ट्रू, इट किल इंसेक्ट एंड पेस्ट. दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस इज द प्रॉपर रीजन एज वेल. बट यू विल लाइक टू नो, इसमें जो इसका आंसर है वो जो तब दिया गया था बी. गॉड नोज व्हाई, अदरवाइज ए इज फाइन विद दिस. तभी तो उसको बायो कंट्रोल एजेंट करके यूज किया जाता है. नेक्स्ट, Baculovirus are used as biocontrol agent. Reason, baculovirus used in ecologically vulnerable areas. तो ये चीज़ अभी आपको समझनी होगी कि baculovirus का बायोकंट्रोल एजेंट करके यूज होता है बिकॉज इट कैन कॉज डिसीज. ओके, तो वो जो है उसके मतलब हमारे लिए जो पैथोजन है उनको वो कर सकता है baculovirus. और यहाँ पर क्या दूसरी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैक्यूलोवायरस कहाँ पर खासकर यूज़ किया जाता है, इकोलॉजिकली वल्नरेबल एरियाज. इसका मतलब क्या कि जहाँ पर कुछ स्पेशीज ऐसे है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है प्लांट के लिए, जैसे बटरफ्लाइज है. अब अगर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो क्या होगा, बटरफ्लाइज भी मारे जाएंगे. तो वो एरिया कैसा हो गया, इकोलॉजिकली वल्नरेबल हो गया. तो वहाँ पर ऐसे बैक्यूलोवायरस यूज़ किए जाते हैं कि जो खासकर एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही वो अपने डिसीज कॉज करेंगे एंड नॉट द बेनिफिशियल फॉना. ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल उसको डिसीज कॉज नहीं करेंगे. सो ऐसे सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज. सो बी विल बी द आंसर. एंड लास्ट वन, BOD इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर क्वालिटी ऑफ वाटर. तो BOD डिवाइस, इंडेक्स ठीक है चलेगा, डिवाइस बोलना थोड़ा सा गलत है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा थोड़ा सा फ्री हैंड लिया जाता है कभी कभी. तो वाटर क्वालिटी का मेजर करने का इंडेक्स या डिवाइस कह सकते हो. हाई BOD इज ऑब्जर्व्ड इन हाईली पोल्यूटेड वाटर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो व्हाट यू से, दोनों चीजें हैं, सेपरेट इंफॉर्मेशन दे रही है. सो यू कैन से इट इज बी. ओके, सो विद दिस वन वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन. ओके, व्हाट एल्स आई कैन से, और क्या कहूँ, सभी चीज़ें आपको पता तो है. एग्जाम पोस्टपोन हो गई है एंड मेनी ऑफ यू मे वंडर दैट why we are not coming in live because there is no use. और वैसे भी थोड़ा समय का अभी दिक्कत हो रही है to available at the right same time every day. अभी कैसा है, कॉलेज भी शुरू हुआ है तो कई सारे काम भी बढ़ते जा रहे हैं. that is why. okay, I hope you can understand the things and 70 more days, 70 दिन अभी आपके पास है. so now you can retune yourself. अभी आप फिर उससे एक बार अपने आप को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा, रीट्यून करना पड़ेगा. सो दैट इस 70 दिनों की आपको प्लानिंग बनानी है. यू कैन व्हाट्सएप मे रिगार्डिंग दिस. ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो
कि इन 17 दिनों में कुछ क्या नया प्लान, मैं तो इस पर भी बना ही रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एंगेज रख सकूँ। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट, और इक्वली इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगले साल भी तो मुझे आज जैसे फ़ोन, कई सारे फ़ोन आए हैं, तो वैसे अगले साल भी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। सो दोज हु विल गेट बेनिफिट दे विल श्योरली कॉल मी। ओके, so with this note, let us wind up this session. Thank you very much for staying with me. I don't know at which time you are going to see this video. Thank you very much.